Okay, according to Fleming's right hand rule, the magnetic field, direction of force, magnetic field, direction of force, and this direction of induced current, they are mutually perpendicular. So, secondly, जो फैक्टर था, फैक्टर्स और फैक्टर इफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, उसमें सेम वही फैक्टर्स आएंगे जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे लास्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में. We can use stronger magnets, we can move the wire factors affecting magnitude of length of magnet. Secondly, that will be length of wire. And thirdly, speed of machine. Right? यहाँ तक ये पिछला था जो हमने रिफ्रेश किया. So यहाँ तक if you have any question, any confusion regarding electromagnetic induction, so you may proceed. वायर की टाइप का फर्क पड़ता है उसमें? नहीं, वायर की जो टाइप है ना मिस्टर, मोस्टली हमने आज तक राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इन इलेक्ट्रिसिटी टिल नाउ, हमने जो टाइप ऑफ कंडक्टर है ना, टाइप ऑफ कंडक्टर, वो भी स्पेशली वायर मेटल कंडक्टर, हमने उनको नहीं डिस्कस किया. यानी आपने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा जिसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, so there are three wires in the same magnetic field. So the deflection in galvanometer is greater as compared to this one, which shows that in these wires or in this setup, there is a larger current induced. So instead, ये एक factor था कि if we use longer wire, double, triple, 4 times, the current magnitude of current, induced current will increase by the same factor. Strength of magnet, motion or force is the same thing. So ये वायर तक हमारे पास जो चीजें हमें याद रखनी है उनमें, मतलब if I repeat regarding wire induced current में आपने प्रिंसिपल याद रखना है कि how current is induced, that is by electromagnetic. अच्छा जी, Faraday stated that कि जी correction or improvement you can say कि करंट हमेशा इंड्यूस नहीं होती. क्यों? क्योंकि करंट के फ्लोलेट से, लेट्स डिस्कस इन दिस वे, कि हमारे पास ना ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारी प्रोसेस, लेट इट बी विद इन दिस रीजन, ये क्रॉसेस हैं सारे, और इसमें लेट्स हैव दिस वायर. So this piece of wire, I'm not saying this is a closed wire, this piece of wire, if we move it this way, so there would be change in magnetic flux around this wire, yes or no? Yes. Yes. But in this case, no current is induced. Can anyone tell me why? Perpendicular नहीं है. नहीं, perpendicular है. You can see magnetic field is into the page and conductor is lying this way and into the page and it is moving horizontally. So they are at 90 degree. But still no current is induced. Current only flows. Got it?
राइट? आपको पता ना, अगर सर्किट में हम स्विच ओपन करते हैं तो इवन द प्रेजेंस ऑफ ईएमएफ सोर्स, पीडी सोर्स, that doesn't cause current to flow through the open switch. तो Faraday stated that कि अगर there is a piece of wire within magnetic field, चले अच्छा क्या समझ नहीं आई ये जो induced EMF और induced current वाली बात है? Yes. ओके, आप मुझे ये बताएं कि लेट्स फॉरगेट अबाउट फॉर अ वाइल, ये आपके पास एक लैंप है, देयर इज अ स्विच एंड दिस इज अ पीडी सोर्स. इज स्विच क्लोज्ड और ओपन? Open. 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 Is there any current flowing through the circuit? No. Although EMF source is there, right? Yes. So when we close it, it provides a closed path for current to flow through it. It means current can only flow if there is a closed path available. In broken circuit or open circuit, current cannot flow. This was what Faraday corrected. He said if this is a magnetic field and we move this piece of wire, only this piece, in this direction. So is this a closed path available around this wire? No. कहते जी जब हम इसको यूं मूव करेंगे ना तो फ्लक्स चेंजेस, फ्लक्स इज चेंजिंग बट नो करंट इंड्यूस्ड. क्यों? करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस. तो जब पाथ ही कॉन्टिन्यूस नहीं है तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकेगा. तो टेक्निकली और प्रैक्टिकली अगर मैं इसके साथ एक छोटा सा लैंप लगा दूं लाइक दिस, विल इट ग्लो? No. No. But what it says, even if there is no continuous path, Faraday, this is what Faraday improved. वो कहता है when we move it, current is not induced, but EMF is induced. EMF stands for, कहता है जी आप यूं करें, आप इसको closed path में convert कर लें with open switch. तो आप पुल करेंगे इस कंडक्टर को with the lamp, it won't glow. But the moment you close it, it starts glowing. Which means के EMF, जो EMF stands for PD source. PD source means the source which can give energy to the consumer. So when conductor moves or flux changes, it's not necessary all the time that current is induced, but all the time EMF is induced. Is it okay now? Yes. बिकॉज ये हम बार बार ना आपकी एमसीक्यूज में भी ये पूछता है कि जी वो सेम यही स्टेटमेंट कि इज करंट इंड्यूस ऑल द टाइम इन अ वायर, पीस ऑफ वायर, इफ देयर इज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. इट्स नॉट इंड्यूस्ड ऑल द टाइम. इट इज ओनली इंड्यूस्ड करंट. Current is only induced if there is a closed path available for current to flow. But on the other side, EMF is always induced irrespective of whether the path is closed or the wire is just piece of wire, it is a discontinuous path. जी, ये चीज clear and then we'll go ahead. जी बेटा, all clear? Yes. Yes. Secondly, now we come to another thing. When we use larger force to move any conductor, or we move the magnet faster, either we increase force, which we use to move the wire, or we use stronger magnet, or we move the magnet faster. In both the case, what we mean to say, let's say I redraw this, the starting diagram. ये हमारे पास फोर्स
और स्पीड, अगर हम इस मैग्नेट को स्लोली मूव करेंगे तो इन 1 second there would be certain number of field lines cutting it. And if we move at a faster speed, would the number of field lines cutting the wire be same in 1 second? No. 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 So moving the magnet faster means using more speed. Would the field lines cutting the wire be more or less? अगर हम मैग्नेट को फास्ट मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो ज्यादा होंगी कट करने ज्यादा वाली या होंगी। कम ज्यादा होंगी. तो समथिंग happening in 1 second, we use a technical word, rate of that thing. Remember this thing? Yes. Yes. So it means when we move this thing, either the wire or the magnet at a faster speed, the rate of change of flux, it increases. What increases? Rate of change of Rate flux. of change of flux. So due to this, we get larger EMF. So Faraday has given a notes, you can see. Faraday ने relation define किया between induced EMF and rate of change of magnetic flux. So magnitude of value of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. And that is applicable universally because whenever there is change of magnetic flux, EMF is always induced. So more the rate of change of magnetic flux, more would be the magnitude of induced EMF and vice versa. Is it okay? Yes. अच्छा, आप में से कोई बच्चा है, एनी वन ऑफ यू, क्या मुझे ये बताएगा कि फैराडे ने बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेट या लिंक किया या किसी और चीज को साथ में? Induced EMF. सॉरी, Induced EMF को किया है। नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ को नहीं किया. उसने मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक. गॉट द डिफरेंस और नॉट? जी, इंड्यूस ईएमएफ का तो मतलब है ईएमएफ इंड्यूस हो गई, उसकी साइज का उसने कुछ नहीं बताया. लेकिन फैराडे ने साथ में ये बताया कि व्हेन वी मूव इट फास्टर वी गेट लार्जर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इफ वी मूव इट स्लोअर वी गेट लेसर इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो that is what he stated as kg the induced EMF means the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Got the difference or not? Yes, sir. Yes. Okay. देखें, मैं थोड़ा सा पीछे. Whenever you change flux, there will be induced EMF. Nothing related relation between values of the magnets, force, or anything else regarding size of EMF. But Faraday stated that when you increase the rate of change of magnetic flux, we get larger EMF. अब इसी को अगर हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल में, वैसे तो हम कर चुके हैं, डिटेल में रिफ्रेश करें तो जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी वेज वी कैन हैव टू चेंज टू इंक्रीज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? जी, एनीवन?
अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो क्या कर सकते हैं हम? Stronger magnet. स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, गुड. कीपिंग द स्पीड सेम, अगर आप एक सिंगल मैग्नेट को 2 मीटर पर सेकंड से मूव करते हो और एक डबल स्ट्रेंथ के मैग्नेट को आप 2 मीटर पर सेकंड से, so you will get more induced EMF in case of double strength even the speed is same. तो वो जो हम फैक्टर्स लिखते हैं ना, यूज स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, मूव इट फास्टर, यूज लॉन्गर वायर, ये सारी चीजें अल्टीमेटली रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इफेक्ट करती है. इज दैट क्लियर? जी बेटा. जी क्लास, यहां तक इज एवरीथिंग ओके? Yes. ओके बेटा. अभी तक ना चले मैं कंक्लूड कर दूं. हमने जो इंड्यूस्ड करंट है और फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ है रिलेटेड टू वायर स्ट्रेट कंडक्टर, हमने उसको प्रॉपरली टोटली डिस्कस किया इन ऑल एस्पेक्ट्स कि हाउ करंट इज इंड्यूस्ड, हाउ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, व्हाट आर द फैक्टर्स, हाउ डू वी नो डायरेक्शन ऑफ करंट एंड blah blah. Next comes our second conductor, and that is solenoid. So solenoid के पास अगर हम एक, let me draw it on a fresh page. अगर हम इस मैग्नेट को we move it closer to this solenoid, there will be change of magnetic flux around this solenoid and this will cause deflection in this galvanometer. So again the question is not about producing induced EMF or अच्छा इस case में will current be induced if we move it or only EMF will be induced? Current will be induced. Current will be induced. अगर मैं ये एक छोटा सा, चले मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ. I leave this space blank, nothing connected here. If we move this magnet, will there be current induced in this case? No. 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 Good. अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है बैक टू वही फॉर्मेट जो हमारा, कि हमें पता है प्रिंसिपल इज दैट कि जी जब भी फ्लक्स चेंज होगा करंट इंड्यूस होगी, वायर खत्म सोलेनोइड शुरू. तो द नेक्स्ट पार्ट इज दैट डायरेक्शन जो है in this solenoid, direction of induced current in the solenoid. How do we know it? So उसके लिए we have lenses. लेंजेस लॉ स्टेटमेंट तो शायद नोट्स आपके सामने ही आपने देख ली हो, लेकिन इसे जरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. कि जब हम ये मैग्नेट मूव करते हैं तो वी आर ब्रिंगिंग इट क्लोजर. फैराडे ये कहता है कि अगर हम इसे मूव ना करें, सॉरी लेंजेस ये कहता है कि अगर मूव ना करते तो देयर वोंट बी एनी करंट इन दिस सोलेनोइड. तो इट ओनली सेज कि इसमें जो ही हम किसी मैग्नेट को मूव करते हैं तो जो करंट इंड्यूस होता है वो उस हमारे एक्शन को अपोज करेगा. करंट जो है, जो इंड्यूस्ड करंट है, अपोजेस द एक्शन टू विच इट इज इंड्यूस्ड. व्हाट अपोजेस व्हाट? जो इंड्यूस्ड करंट है इन द सोलेनोइड, ओनली फॉर सोलेनोइड, that current will oppose that activity which was responsible for producing EMF. So अब उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपोज करेगा? इसमें बेसिकली वो पिछले चैप्टर में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि whenever there is current
magnetic field is always produced around that current carrying conductor. तो जब इस सोलेनॉइड में हम इसे मूव करेंगे, नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग दिस एंड ए, ऊपर भी सॉरी ए भी लिख दिए, चले आप अभी इसको कंसिडर करें ए और बी। नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है कॉइल की तरफ, तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगी। तो ये जो करंट इसमें आएगी उसने इस नॉर्थ को अपोज करना है, रिपेल का लफ्ज नहीं यूज करेंगे, अपोज करना है। अपोज का मतलब है नॉर्थ वांट्स टू कम क्लोजर टू द सोलेनॉइड एंड करंट विद इन दिस सोलेनॉइड विल ट्राई टू स्टॉप इट। सो उसके लिए विच पोल विल बी इंड्यूस्ड एट दिस एंड? नॉर्थ, एंड ऑन दिस साइड इट विल बी साउथ। ठीक है, so this is how it will oppose. Up, having these two poles, we can use that previous rule, वही पुराने वाला right hand rule, to mark direction of current in the winding. So keeping your thumb on the north side of this solenoid, holding it in right hand, the finger goes upwards like this. So ये front winding में I am marking direction of current. So this pointer will go towards A. Is it okay? Yes. Okay. अगर yes तो इसे दोबारा हम इधर यूं करते हैं, सोलेनॉइड X, Y, galvanometer, north pole being moved away from this solenoid. So can anyone tell me which pole is induced at B? South. South. Because जिसको बेटा डाउट हो ना वो पूछ ले। मसलन जिस तरह आप सुन रहे हो, कुछ बच्चे आंसर फौरन दे देते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। तो अगर किसी को डाउट हो, लेंस यही कहता है ना कि इंड्यूस्ड करंट इस एक्टिविटी को अपोज करेगी। अपोज करने का मतलब है नॉर्थ इज गोइंग अवे, तो द पोल ऑन दिस साइड विल ट्राई टू स्लो इट डाउन, टू स्टॉप इट. So it needs attraction to stop it or slow it down. So we have south pole on this side and north. Again the direction of current coincidence कह लें, ये नहीं है कि it is always upwards. So ये यहाँ से घूम के आएगी तो pointer goes towards x. अगर मैं एक डायग्राम यूं चले करते हैं, south, it is falling away from this solenoid. So which pole is induced at x? North. South. This is falling downwards. So इधर क्या होगा x पे? South. दोनों आवाजें आई हैं, किसी ने नॉर्थ भी कहा है. If this south goes away from, what will be here on this side? North. North. So automatically it will be south on this side. Got it? Yes. Yes. Okay. So किसी को अभी तक लेंजिस लॉ, मैं उसके नोट्स पे डेफिनेशन पे आता हूँ, ये देखेंगे, ये नीचे डायग्रामेटिक डेमोन्स्ट्रेशन भी लिखी हुई है, दिखाई है. लेंजिस लॉ, the direction of induced current in solenoid will be such that it opposes the cause producing it. What is this it? It is the induced current itself. And this current, the direction of that current will always oppose that activity which is responsible for producing that induced current. जी, any questions regarding दो चीजें, Lenz's law और Faraday's law? Class.
Class. Any questions, beta? तो यहाँ पे आपकी आवाज बेटा नहीं आ रही बिलाल। यहाँ पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ का फर्क पड़ेगा। ये बेटा ये देखें, मैं अगर बताऊं तो हमने जो फैक्टर्स तो अब लिख रहा हूं ना, मैंने सिर्फ डायरेक्शन की बात की है। जो फैराडेज लेंजेस लॉ है वो आपको सिर्फ डायरेक्शन बताता है, वो मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा। मैग्नीट्यूड तो फैक्टर से आते हैं ना, वो आगे हम ये करने लगे हैं। इफ यू कैन सी द स्क्रीन, तो मैंने कहा कि अगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट सोलेनॉइड में नहीं पता चली, प्लीज डू आस्क। अगर फैराडेज लॉ में कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, डू आस्क। जी सर, Faraday's law में तो कुछ यहाँ पे और फिर से समझा। Okay, lenses and Faraday, they are okay. सर Faraday's law समझाते हैं सर। Faraday's law. Faraday's law ने सिर्फ एक काम किया था कि जो बेसिकली उसने जो हमारे फैक्टर्स है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट के, जनरली किसी भी चीज में जो फैक्टर्स है ना, इंड्यूस्ड करंट हो या इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, उनको उसने जनरलाइज करके एक सिंगल फैक्टर बना दिया था जिसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। दो बातें थी कि उसने सारे फैक्टर्स को समराइज प्रिसाइज करके उसने कहा जी आप मैग्नेट स्ट्रॉन्ग यूज करते हो, इट इंक्रीजेस, आप फास्टर मूव करते हो, इट इंक्रीजेस। कहते हैं इन ऑल दीज चेंजेस वी ओनली गेट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट। ठीक। सो फिर उसने कहा, जो दूसरी इसमें दो बातें मैंने कहा, एक तो उसने सब फैक्टर्स को सम अप किया रेट के साथ, और दूसरा उसने कहा कि इंड्यूस्ड करंट इज नॉट ऑलवेज देयर, इट्स द ईएमएफ व्हिच इज ऑलवेज देयर। सो वैल्यू द साइज और वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ directly depends on rate of change of magnetic flux. That's it. This is Faraday's law. जी बेटा, ओके यस सर। ओके बेटा। व्हाट अबाउट द सेकंड वन, लेंजेस लॉ? आपकी आवाज नहीं आ रही किसी की भी। मे भी आपकी वॉइसेस ओवरलैप कर रही हैं जिसकी वजह से मुझ तक कुछ नहीं आ रहा। तो डिस्प्ले में आ रहा है कि जी टॉकिंग। जी शैल वी गो अहेड? यस सर। ओके बेटा, ये हम कर रहे थे जी फैक्टर्स इफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ। देखिए मैग्नीट्यूड, आई होप एवरीवन एट दिस स्टेज इज वेरी मच क्लियर अबाउट दिस वर्ड मैग्नीट्यूड, इट स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ समथिंग। तो फैराडे ने भी साइज ही की बात की थी रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी ये जो है, जो हम लेंजेस लॉ कर रहे हैं, ये फैक्टर्स हैं किसके? इंड्यूस्ड करंट के। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट फैक्टर्स, इंड्यूस्ड करंट वो भी किसमें? इन पर्टिकुलर सॉलिनॉइड। नंबर वन ये है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, number two, number of turns of solenoid,
And number three, if you can make a guess, that is using soft iron Ore. ore. ठीक है जी? So these are the three major factors due to which we can have larger induced current in solenoid. जी, is that okay? Now this is just an application of Lenz's law along with the Faraday's. दोनों का combination है. कहता है जी oscillating a magnet near a solenoid. मसलन what it says कि ये एक solenoid है और इसके पास हमने अगर एक मैग्नेट को नॉर्थ साउथ we make it to oscillate like this between A and B. When it goes this way, the south pole is approaching. What about magnetic flux? It increases. And when it goes back, the south goes away. So for this case, B will be south, this one, when south is approaching. And when this south pole is receding, this end will be north. Is it okay? According to Lenz's law. Yes, sir. Okay. So if the magnet continues to oscillate, so we can see having alternately north and south here, south and then north, either north hoga, either south, and they keep on switching, swapping. So this will make current either to go up and then next moment it will go down. So the pointer, what it does, it goes this way, it goes this way. So the pointer keeps on oscillating. So when this magnet oscillates near this solenoid, the flux keep on changing, and this causes an alternating induced current in the solenoid. अब थोड़ी सी चीज है, अगर आप वो नोट्स पे मैं अभी जाता हूँ, आपके सामने है तो आप वो खोल मैं जरा, अगर हम A से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैग्नेट वाज एट A लाइक दिस, मैग्नेट ऐसे है और ये आगे जाने लगे, तो एट दिस पॉइंट द स्पीड ऑफ मैग्नेट विल बी 0. व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सोलेनॉइड व्हेन इट इज एट A? It will be 0. As it starts moving from A towards B, what happens to its speed? Increases. Increases. So does the rate of change of magnetic flux, and so does the magnitude of induced current. So when it is at O, when it is crossing this position O, the speed would be maximum, and the rate of change of flux would be maximum, and the magnitude of induced EMF would be maximum. If I label for this thing, if I label, चलें, for O से जब ये आगे जाएगा तो speed gets slower and slower, and at B it becomes 0. So again the magnitude of induced EMF keeps on decreasing. Can anyone tell me ये position 1 जो है 2, 3, ये मैग्नेट की किन A, O और B किन पोजीशंस को रिलेट करती है? 1 जो है स्टार्टिंग ग्राफ की, ये मैग्नेट की किस पोजीशन को शो कर रही है? A. A. Good, because rate of change of magnetic flux 0, so current or induced EMF 0.
As it is coming towards O, the speed is increasing, magnitude of induced EMF. So at O, it Maximum. becomes maximum. Oh, And again, it slows down. So by the end at B, it again becomes zero. So during whole of this movement from A to B, इस सोलेनाइड के इस एंड पे साउथ पोल ही रहता है. गॉट इट. और जूं ही ये वापस आने लगता है तो साउथ पोल क्या बन जाता है एकदम से नॉर्थ पोल. और दिस मेक्स द डायरेक्शन ऑफ करंट टू रिवर्स इन द सोलेनाइड. सो यू हैव टू रिमेंबर, मतलब जब आप जनरेटर कर रहे होंगे तो उसमें पूछते हैं कि किस जगह पे द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड और व्हाई इट इज रिवर्स्ड. तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा आपने ना कंसंट्रेट करना है इस चीज पे. जब ये साउथ पोल अप्रोच कर रहा था, साउथ एंड सॉरी, ए से बी की तरफ साउथ आ रहा था, तो फ्लक्स स्ट्रॉन्गर हो रहा था, वीक हो रहा था. सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा. जब द मैग्नेट वाज मूविंग फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, was the flux growing stronger or weaker? Stronger. So it keeps on becoming stronger and stronger and stronger, and that maintains direction of current in the solenoid, maintains. The moment it goes back, what about the flux? Does it again start increasing or it starts decreasing? Please. It increasing. starts decreasing. Decreasing. So decreasing. Decreasing from when it moves from B2 towards A, flux Okay. starts, and as the flux starts decreasing, the direction of current is reversed as well. Reversed. Got it? Yes, sir. So the point to understand or to remember is that if flux goes on increasing, current will have certain direction. But the moment flux starts decreasing, the direction of current will be reversed as well. Is it okay? Yes. चलिए, यहाँ तक बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. ये देखिए, ये जो हम कर रहे थे, ये उसी की दो चीज़ों की एप्लीकेशन थी कि फ्लक्स करंट की डायरेक्शन कैसे आ रही है एक चीज़, और दूसरा उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी क्यों कर रहा है. सो सिंस इट इज ऑसिलेटिंग, continuous back and forth motion of the magnet poles near the end of the solenoid causes the magnetic flux to change periodically in the same time. Consequently, an alternating EMF is induced in the solenoid and the pointer oscillates about the mean position in harmony with the frequency of motion of magnetic poles. यानी अगर एक सेकंड में अगर मैग्नेट की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, लेट इट बी, तो जो हमारा इधर साइकिल बनेगा वो भी एक सेकंड में 10 साइकिल्स ही बनेंगे. जी बेटा, यहाँ तक एनी क्वेश्चंस, एनी doubts or anything else you want to ask in general? जी बेटा, है कुछ? Take your time and tell me if you have any questions. जी, anyone?
बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन पीछे वो मुर्गे की आवाज आ रही। जी, नो क्वेश्चंस। सर सीआईज का पता है? सीए इसका एग्जाम हाँ जी जी। वो बेटा वो जून वाले अभी तक प्लान है कि टिल जून जो एग्जाम्स थे ना, वो तो सीएईज ने उन्हें एडजस्ट करने की बात की है। अगर कोई बच्चा विदड्रॉ करना चाहता है वो विदड्रॉ कर सकता है थ्रू स्कूल, या प्राइवेट है तो डायरेक्ट ब्रिटिश काउंसिल से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा अपीयर होना चाहता है तो मई 31 तक तो कोई एग्जाम नहीं वो कंडक्ट करेंगे पाकिस्तान। उसके बाद एज पर डेट शीट जो सीआईज की आपकी है, जो भी 1 जून ऑनवर्ड स्केड्यूल है वो एज इट इज। अगर किसी पेपर का एक वेरिएंट आप दे रहे हो, एक कंपोनेंट, तो वो एक ही पेपर चलेगा। बाकी जो मिसिंग है वो सारे आप अक्टूबर नवंबर में अपीयर हो सकते। ये अभी तक जो लास्ट अपडेट्स है वो ये है। सर इसके फायदे? नहीं, फायदा तो बेटा देखो ना, आपका कोई एक सब्जेक्ट है रिलेटिवली फिजिक्स, आपके 3 पेपर हैं, आपके 2 रह जाएंगे, एक 2 मिस हो गए, एक चला गया, तो सिंगल कंपोनेंट से आपको क्या मिलेगा? तो उससे आप वो ग्रेड तो नहीं, रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। यू हैव टू अपीयर, सर इससे मस्ट। जी जी। सर इससे बच्चों का साल जाया नहीं होगा? देखिए, वो कोशिश तो वो कर रहे हैं कि बच्चे अगर अपीयर हो जाए, कोई इस तरह की सिक्योर कंडीशंस मिल जाएं तो वो शायद साथ ही ले लें, लेकिन अदरवाइज ये अब सबको फेस करना पड़ेगा। ये देखिए, जो सारी उन्हीं की कुछ एजुकेशन अथॉरिटीज की, ये सब की ये सारी सजेशंस पे बेस्ड है कि बच्चों का साल या टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए ये क्लासेस ऑनलाइन हर जगह मैनेज की जा रही है कि किसी मगर सर वो तो बोर्ड्स वालों के लिए नहीं ना हो रहा, जो लाहौर बोर्ड है, जो पाकिस्तान के बोर्ड है। सीआईज वालों के लिए तो साल जाया हो गया। नहीं, इनका भी इफेक्ट होगा ना। देखिए, आपको नहीं, अभी आप थॉरली अगर देखोगे ना, तो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी एग्जाम्स आने हैं, अगर उनके एग्जाम ही खुदा ना खास्ता नहीं हो सकते तो उनके आगे एडमिशन किस तरह होंगे यूनिवर्सिटीज में? तो ये आप सिर्फ अपने सिनारियों में सोच रहे हो, वरना हर जगह उसी तरह इक्वली ये खुदा ना खास्ता वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी तो आपने देखा ना, मैट्रिक 9 के स्टार्ट हुए थे शायद, इफ यू नो दिस थिंग। अभी 2 पेपर हुए थे तो साथ ही वो कट ऑफ हो गए। तो पेपर तो उन्होंने लेने हैं, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ग्रेड 7 तक उन्होंने आगे प्रमोट कर, ये सिचुएशन। ओके। हाँ जी बेटा। अच्छा जी, ये मेरे सामने ना एक डायग्राम मैंने जनरेटर की खोली हुई है डिस्प्ले में। आप मुझे बताएंगे मोटर में और जनरेटर में जो डायग्रामेटिक डिफरेंस है कुछ है? कम्यूटेटर्स का आउटपुट टर्मिनल एक हो गया, 2 हो गए, गुड हो गया। रजिस्टर भी तो है। हाँ, वो लोड है, वो आपसे कभी नहीं इसका पूछेगा। चले, आपने देखा डायग्राम में डिफरेंस है, गुड। मेन चीज अभी तक कोई नहीं बोल रहा, मेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए, ये एसी है वो डीसी था। चले, ये भी हो गया। अच्छा, मैं बोल देता हूँ, अब लास्ट है वो बच गया, वो है इसमें पीडी सोर्स नहीं है, इसमें पीडी सोर्स है। ठीक है, अगर आप मोटर की डायग्राम पीछे नोट्स में देखें तो उसमें पीडी सोर्स था, पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स, बिकॉज उसमें हम करंट सप्लाई करते हैं, और इसमें हमने करंट जनरेट होता है। सप्लाई नहीं करना,
जनरेट करना है या होता है, तो इसमें हम पीडी सोर्स नहीं लगाएंगे। हालांकि बाकी सेटअप अगर आप देखें, कॉयल है, मैग्नेट्स हैं, रिंग्स हैं, ऑलमोस्ट सेम है, बट दिस इज अ सोर्स ऑफ पीडी एंड दैट इज मोटर इज अ कंज्यूमर ऑफ पीडी। सो इस चीज को ज़हन में रखते हुए जब हम देखेंगे, और इसकी रोटेशन वैसे अगर आप पेज वाइज आगे देखें तो जो अभी हमने वो मैग्नेट की ऑसिलेशन डिस्कस की है ना, करंट क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, तो ये आप नेक्स्ट लेसन से पहले अगर आप इसे जस्ट एक गो थ्रू रीडिंग भी करेंगे तो यू विल कम अक्रॉस एवरीथिंग कि जी वो क्या है। सेकेंडली अगर आप इसकी रीडिंग कर लेंगे तो नेक्स्ट लेसन में कम से कम ये होगा कि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है जी। चलें बेटा, जी सर। आज के लिए यही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी स्केड्यूल होगा वो आपको आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपके पास शायद नंबर मेरा होगा, अगर कोई वैसे जनरल क्वेश्चन पूछना हो व्हाट्सएप पे तो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है जी। ठीक है जी, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज।